Hey, good afternoon to all of you. No one has joined the class till now. No one has joined the class till now, so I'm just going to record this lecture. And if anyone is interested to participate, they can just go to our YouTube channel. They can this record. Now let me share the PPT. Yesterday we have discussed LR 0 parser and SLR 1 parser. Now today we will discuss CLR 1 parser and LALR. So SLR 1 parser we have discussed. Is SLR 1. We have discussed this parser. We will discuss. CLR 1 part. So CLR refers to the canonical look ahead. If parsing use the canonical collection of LR1 item, it builds CLR1 part. So I told you LR0, SLR1, CLR1, LALR1, all parcels need input stack, parsing algorithm, and parsing table. So only difference is construction of पार्सिंग टेबल, क्योंकि पार्सिंग टेबल की कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो इससे पहले हमने क्या निकाला था LR0 आइटम, canonical cover of LR0 items, but here we have to find canonical collection of LR1 item to construct the LR1 parsing table. What is the meaning of canonical collection of LR1 item? LR0 item में क्या होता है? LR0 item is dot with any item ना, जैसे किसी भी आइटम के आगे पीछे तुम डॉट लगाओ, जैसे फॉर एग्जांपल तो दिस इज डॉट ए डॉट बी, दिस इज LR0 item. Okay, then what is the meaning of LR1 item? LR1 parsing table produce the more number of states as compared with LR1 parsing. You will see an example. In CLR1, we place the reduced node only in the look ahead symbol. So in LR0, we place the reduced node in all row of the terminal symbol. In SLR, हमने कहा पुट किया था only the follower of the left hand side. But in CLR, we place the reduced node or reduced node only in the look ahead symbol. So look ahead symbol जो भी होगा हमारा, उसको उसी में हम सिर्फ reduced node करते हैं. And shift move and go to move all are same. So various steps that involve in CLR1 parsing it for the given input stream, context grammar, ambiguity check करेंगे. Because then you have to remove this ambiguity. Otherwise, then after that you have to add argument protection. Then create canonical collection of LR1 item, not LR0 item. Draw the flow diagram, or we can say deterministic finite automata, construct a CLR1 parsing. So what is LR1 item? LR1 item is a collection of LR0 item plus look ahead symbol. So LR0 item क्या होता है ये पढ़ सकते हैं, इसमें हम look ahead symbol ऐड, ठीक है? So the look ahead is used to determine that where we place the final item. Final item को कहाँ place करना है? इससे पहले क्या था, final item को हम place कर रहे थे. Final item means final item की meaning होती है, लेकिन यहाँ पे like dot at the rightmost side of any line, like a dot. This is final item. S dot is final item. So dot at the rightmost side of any item is called final item. So final item के लिए क्या करते हैं? Reduce move. तो reduce move हम कहाँ पे रखेंगे वो अभी हम देखेंगे आगे पार्सिंग टेबल को. तो हम देखेंगे लुक अहेड सिंबल. जैसे मान लीजिए अगर से हमारे पास ए डॉट ये है, ए डॉट एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है C, D. Then we have to place move, reduce move only in the terminal C and D, not in all the row, not at the follow-up left hand side. ठीक है, हम सिर्फ C और D में ही इसको को हम रखेंगे. तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा. The look ahead always add dollar symbol for the augmented production. तो look ahead symbol for the augmented production के लिए क्या होगा? डॉलर होगा हमेशा.
एग्जाम्पल जैसे लिया एस टू ए टू ए कैपिटल ए एंड देन ए टू बी, दिस इज द प्रीवियस एग्जाम्पल इन LR0 SLR1। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, लुक फर्स्ट वी हैव टू ऐड argument, we have to add s dash, then the look ahead symbol क्या होगा इसके लिए, डॉट। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइप। ओके, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो augmented production insert dot symbol at the first production of every production and outside head, यहाँ पे हो जाएगा s2 s dash dot s and then s2। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे look ahead symbol नहीं आया। अब कैसे निकालेंगे, हम चेक कर लेते हैं। तो पहले तो मैं क्या लिखा, look ahead symbol s dash 2 dot s। Now because dot after dot there is a non-terminal s, you have to write s production, s2 with dot at the beginning, dot। so what is look ahead symbol in this? so look ahead symbol निकालने के लिए जैसे वाले हम यहाँ लिखते हैं a2 अल्फा अल्फा डॉट b बीटा, सॉरी अल्फा डॉट एंड लुक एट सिंबल। तो अब हम करेंगे क्या, इसका लुक एट सिंबल निकालने के लिए हम चेक करेंगे डॉट के बाद क्या पड़ा हुआ, डॉट के बाद जितना भी सिंबल बचा हुआ इसका फर्स्ट निकालेंगे, फर्स्ट ऑप्शन ये अप्लाई फर्स्ट ऑप्शन FIR। in lecture number 3 we have studied first and follow operation, so first इसका निकालेंगे। और अगर से ये बीटा नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या निकालेंगे, जो हमारे पास डॉलर है उसको निकालेंगे। तो यहाँ देखिए s2 डॉट एस, तो डॉट एस के बाद क्या है, डॉलर है, तो फर्स्ट ऑफ डॉलर क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट ऑफ डॉलर इज व्हाट, डॉलर। यहाँ पे क्या आएगा, नाउ because dot a के बाद क्या नॉन टर्मिनल, अगेन वी हैव राइट ऑल प्रोडक्शन ऑफ a विद डॉट एट द बी। a2 क्या है हमारे पास, a डॉट a एंड देन a2 डॉट। अब यहाँ पे लुक अहेड क्या होगा, तो डॉट a, तो a के बाद सिंबल कौन सा बचा हमारे पास, तो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ a डॉलर, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ a डॉलर, first of a dollar is first of a and first of a is what, small a and small b। तो लुक एट सिंबल क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, स्मॉल यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल a। देन आफ्टर दैट डॉट, डॉट के बाद क्या है हमारे पास, नॉट टर्मिनल, नो नीड टू एक्सपेंड दिस एंड अगेन टर्मिनल इस और लेट मी यूज इरेजर। So this is called I now। यहाँ देख रहे हैं आप क्या है, LR0 आइटम भी है, तो डॉट एस इज LR0 आइटम, डॉट एस इज LR0 आइटम, फिर लुक एट इट विल बिकम LR1, LR1 एंड दिस इज LR0 आइटम। तो मैं बताया था आपको LR0 आइटम प्लस व्हाट इज LR1 आइटम, LR0 आइटम। लुक एट यहाँ पे देखिए सारे प्रोडक्शन में क्या लुक एट है, डॉलर लुक एट है, इसमें a/b लुक एट है। नाउ अब हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे। पहले हमने इस डैश निकाला, सब क्लोजर निकाल लिया, नाउ ट्रांजिशन गो टू, तो एस डैश टू एस, एस से कहाँ जाएंगे, एस से हम जाएंगे, तो एस से हम डॉट कहाँ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा, तो एस डैश एस डॉट। और जब हम ट्रांजिशन करेंगे, जब हम ट्रांजिशन करेंगे तो हम लुक एट सिंबल चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन ट्रांजिशन while we do transition look at symbol might not change, look at symbol, look at symbol change नहीं होगा, but when we do closure,
जब क्लोजर लेंगे तो लुक एट सिंबल बाइट चेंज। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस डॉट आ गया हमारा, इस डॉट से फाइनल आइटम, तो नो नीड टू, बिकॉज़ डॉट कहाँ पे राइट मोस्ट साइड में आता है। तो दिस फाइनल आइटम। नाउ अब हम आएंगे कैपिटल ए से। कैपिटल ए में क्या हो जाएगा हमारे पास, इस डॉट हमारा एक आगे आ जाएगा, ये डॉट ये हो गया, बिकॉज़ वी आर डूइंग ट्रांजिशन, तो लुक एट सिंबल चेंज होगा हमारे पास, तो डॉलर प्रॉब्लम रहेगा। नाउ डॉट ए के डॉट के बाद क्या है, नॉन टर्मिनल आया है, देन वी हैव टू एक्सपेंड नॉन टर्मिनल और वी राइट ऑल प्रोडक्शन ऑफ नॉन टर्मिनल, दैट्स व्हाट ए एंड डॉट, और देन लुक एट सिंबल क्या हो जाएगा। तो अब डॉट के बाद क्या था, ए था, और ए के बाद क्या है हमारे पास, डॉट के बाद ए के बाद क्या है हमारे सिंबल था, डॉलर। फर्स्ट क्या आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा, एंड फर्स्ट डॉलर। ओके, दिस इज व्हाट ए से हमारा है। नाउ स्मॉल ए पे क्या होगा, स्मॉल ए पे हम आएंगे तो ये हमारा साइड में आ जाएगा, ए डॉट ए, और हमारा ए भी ऐसे ही रह जाएगा, बिकॉज़ लुक एट सिंबल नॉट चेंज बाय ट्रांजिशन। पर डॉट ए आ गया हमारे पास, तो डॉट ए मतलब ये ऑल प्रोडक्शन ऑफ दिस, ये क्या हो जाएगा हमारा डॉट ए एंड ए डॉट बी, एंड लुक एट क्या होगा इसके बाद, ए बी रहेगा, ए बी रहेगा, फर्स्ट ऑफ ए बी इक्वल टू ए, फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट। अब बी पे क्या आएगा हमारे पास, बी पे लेंगे तो ए टू, हमारा ए है ए टू बी डॉट, और लुक एट सिंबल चेंज होगा, फाइनल आइटम। तो दिस वन इज फाइनल आइटम, बिकॉज़ डॉट एफ इज द राइट, ये हमारा आई नॉट, आई वन, आई टू, आई, नाउ इससे हम फिर ये चेक करेंगे, तो ये क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि डॉट ए एंड डॉट बी, these two are same, yes these two are same in AR0 item, but in AR1 item they are different look ahead symbol। एक I2 में क्या है, look ahead symbol डॉलर है, तो क्या है ये स्लैश बी है। तो दिस वे वी कैन फाइंड रेस्ट ऑफ द स्टेट्स by using by identifying LR1 item, ठीक है। तो LR1 आइटम क्या है, LR0 आइटम प्लस उसका लुक अहेड सिंबल, ये हमारा होता है सारी चीजें। तो नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो हमने देखा बाई नॉट स्टेट क्या होगा हमारे पास, ऐड आर्गुमेंट प्रोडक्शन, तो और जो मैंने किया था उसमें वर्ड्स में यहाँ लिख दिया है, एस डैश टू एस, देन वी हैव टू ऐड ऑल द प्रोडक्शन ऑफ एस, तो एस टू डॉट डॉट ए डॉलर, ये हमारे पास आई नॉट आई वन स्टेट हमारे पास आ गई थी, क्या इसको हमने मूव किया। तो अब यहाँ पे सीधे बात है किसपे, डीएफए। तो अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ था, और लेट मी राइट प्रोडक्शन हियर, एस टू ए टू डॉट ए एंड ए टू। तो अब देखिए हम डॉट से गए तो एस से कहाँ गए, एस हमारा पहले बाद में आ गया, और डॉलर सिंबल आ, तो ये हमारा फाइनल आइटम हो गया, फाइनल आइटम, ये हमारा फाइनल आइटम है। एंड देन एस डैश टू ए डॉट, तो अब यहाँ पे डॉट कहाँ है, डॉट के बाद टर्मिनल आ गया, नॉन टर्मिनल, देन वी हैव टू एक्सपेंड ए आउट, ए को हमने प्रोडक्शन दिया, और व्हेन वी डू ट्रांजिशन लुक एट सिंबल रिमेन सेम, बट यहाँ पे करेंगे तो लुक एट सिंबल क्या होगा, डॉलर पर डॉलर ही रह जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ डॉलर इज डॉलर। आई3 पे आए, अब यहाँ पे आई3 पे आए तो ए पे क्या गए, ए टू ए डॉट ए गए। अब देखिए जब हम ए डॉट ए लिखा हमने, तो डॉट ए मतलब क्या, इसका हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑपरेशन, तो फर्स्ट ऑफ ए डॉलर इज व्हाट, फर्स्ट ऑफ ए, एंड फर्स्ट ऑफ ए इज व्हाट, ए एंड बी, यहाँ पे ए भी आ गया, यहाँ भी ए भी रहेगा, एंड देन यहाँ पे नाउ दिस इज फाइनल आइटम, दिस फाइनल आइटम। अब I1 से हम आए, I2 से हम ए पे गए, ए हमारा राइट मोस्ट में आ जाएगा, दिस इज व्हाट फाइनल आइटम। एंड देन स्मॉल ए पे गए तो ए डॉट ए आया, देन अगेन डॉलर रिमेन सेम, बट ए से क्या हमारा ये नॉन टर्मिनल है, ये हैव टू एक्सपेंड ऑल द प्रोडक्शन ऑफ ए, ये हमने यहाँ प्रोडक्शन एक्सपेंड कर दिया, और फर्स्ट ऑफ डॉलर क्या हो जाएगा हमारा, डॉलर डॉलर ही रहेगा। एंड देन यहाँ पे हम ए से यहाँ चले गए,
बी से हम सिर्फ आ गए यहाँ पर, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आइटम। अब देखिए बी डॉट यहाँ भी है, बट दे आर डिफरेंट, व्हाई, बिकॉज दिस इज I4, दिस इज I7, व्हाई, बिकॉज दे आर डिफरेंट। लुक एट सिंबल, यहाँ पे लुक एट ए भी है, यहाँ पे डॉलर, और ए से हमारा ये हमारा क्या आ गया फाइनल आइटम है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ए पे चेक करेंगे तो देखिए जब स्मॉल ए पे आएंगे तो क्या जाएगा सेम, स्मॉल ए पे करेंगे तो ए डॉट आएगा, देन ए डॉट पे हमारा क्या मिल जाएगा ये सिंपल, और कैपिटल ए से हमारा आई मिल जाएगा। तो ये सब हमारा क्या होगा फाइनल आइटम, ये भी हमारा। नाउ वी कंस्ट्रक्ट पार्सिंग टेबल, दिस इज डीएफए, यूजिंग दिस डीएफए। तो देखिए स्मॉल कैपिटल ए से क्या है हमारे पास शिफ्ट है, देन कैपिटल ए पे भी शिफ्ट है, और स्मॉल ए पे क्या है गो टू, तो गो टू I3 हो जाएगा, स्मॉल ए पे क्या है गो टू 4 हो जाएगा, देन I1 से तो कुछ नहीं होगा बिकॉज I1 इज द फाइनल आइटम, देन I2 से स्मॉल कैपिटल ए पे क्या है शिफ्ट I5, स्मॉल ए I6, गो टू I6 एंड गो टू। लेट मी जस्ट कंस्ट्रक्ट द पार्सिंग टेबल इन CLR1। यहाँ देखिए ये पार्सिंग टेबल हमारे पास है S3 S4, तो आप देख रहे हैं I नॉट से क्या था हमारे पास, I नॉट से S पे क्या आए थे हम, ए से स्मॉल ए पे क्या आए थे, स्मॉल ए से हम कहाँ गए शिफ्ट पे चले गए थे, तो I3 हो गया, यहाँ पे क्या हमारा स्मॉल बी से I4 हो गया, एंड डॉलर पे कुछ है नहीं, I1 से डॉलर पे क्या है बिकॉज दिस फाइनल आइटम हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा ये, एंड I4 पे हमारा क्या है फाइनल आइटम, तो I4 पे क्या होगा रिड्यूस 3 बिकॉज दिस इज S2AA A to A कैपिटल ए एंड कैपिटल A to B, दिस प्रोडक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 2, नंबर 3। जब हमारा फाइनल आइटम हो तो ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, ये क्या होगा रिड्यूस A to B, तो B में क्या 3 है, क्या हो जाएगा ये रिड्यूस हो जाएगा 3, और किस में रिड्यूस होगा सिर्फ ए और बी में आएगा, जहाँ पे क्या होगा रिड्यूस कहाँ पे आया हमारा सिर्फ ए और बी में आया, जैसे लुक अहेड सिंबल। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या था, LR0 में क्या कर रहे थे हम, दिस रिड्यूस मूव इज प्लेस इन ऑल द रो, हियर आल्सो इन CLR1 में क्या था, वी हैव टू कंप्यूट फर्स्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट ऑफ ए, बट हियर वी हैव नॉट कंप्यूट फर्स्ट ऑफ ए, सॉरी फॉलो ऑफ ए, यहाँ पे फॉलो ऑफ ए कंप्यूट नहीं कर रहे हैं, और हम ऑल रो में प्लेस नहीं कर रहे हैं, हम इसमें प्लेस करेंगे सिर्फ इसका जो लुक अहेड सिंबल होगा, लुक अहेड सिंबल क्या है ए एंड बी था, तो हमने ए और बी में सिर्फ प्लेस किया, देन बी पे क्या है हमारा फाइनल आइटम है, तो बी पे क्या हो गया हमारा I4 से बी पे क्या जाएगा R1 A to B, और यहाँ पे क्या है बी है, तो I5 से हमारा क्या आ गया डॉलर शिफ्ट में, ठीक है। ये हमारा क्या है फाइनल आइटम है, क्या हो जाएगा तो उस पे आ जाएगा डॉलर पे आ जाएगा, तो I4 सही है, देन I5 से हमारा देख लेते हैं R1 आ गया, बिकॉज ये हमारा क्या है 1 प्रोडक्शन है, तो रिड्यूस टू 1 में आएगा, किस में आएगा सिर्फ उसमें आएगा डॉलर में आएगा, यहाँ पे क्या है डॉलर के अंदर आएगा S6, दिस इज द रिड्यूस मूव, दिस इज I नॉट से हम गए यहाँ पर तो 2589 ये हमारा है, ठीक है। तो आई नॉट से हम ए पे गए तो क्या आया है 2, ठीक है। आई नॉट से एस पे गए तो क्या आया है 1, तो आई नॉट से हम एस पे गए तो कहाँ पे 1 पे गए हैं, और आई नॉट से ए पे गए तो 2 पे गए, 2 आ गया हमारा। तो ये हमारा क्या है पार्सिंग टेबल है, तो एक्शन मूव एंड गो टू मूव दीज आर सेम, एक्शन मूव एंड गो टू मूव सेम, बट ओनली डिफरेंस इज इन रिड्यूस मूव, यहाँ पे से चेक होता है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या, यहाँ पे जो ब्लैंक एंट्रीज है वो मोर है एज कम्पेयर टू LR0 एंड SLR1, तो अब क्या होगा इसकी एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू SL0 एंड SLR1, ओके। दिस इज CLR1 टेबल पार्सिंग टेबल, तो यहाँ पे हमने स्पेंड किया 1 to 3 करके। नाउ LALR1 इट रिफर टू लुक अहेड LR, इसमें क्या होगा कि अभी आपने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स, तो नंबर ऑफ स्टेट्स क्या थी यहाँ पे ज्यादा थी हमारे पास LR0 में, और SLR1 में क्या थी हमारे पास SR0 में, SLR0 और LR0 में क्या थी हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट कम थी एज कम्पेयर टू CLR1, बट CLR1 में नंबर ऑफ स्टेट ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ लुक अहेड सिंबल, क्योंकि लुक अहेड सिंबल से हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं स्टेट्स। अब इसने क्या किया LALR में जो लुक अहेड जो नंबर ऑफ स्टेट ज्यादा आ रही थी उसको हम कंबाइन करें, तो कैसे करेंगे देखिए I3 और I6, यहाँ देखिए I3 एंड I6, तो S3 S4 and S6 S7, let me just go to the state I3, तो I3 कहाँ यहाँ पर है
I3 is here, yes. I3 एंड I6। आप देख रहे हैं दोनों स्टेट सेम है ना, यहाँ भी A टू A है, A टू A है, A टू डॉट B है, but they are different only in the terms of look ahead symbol. So we can combine I3 and I6. Okay. Similarly for I8 and I9, देखिए यहाँ भी A डॉट है, यहाँ भी हम कंबाइन कर सकते हैं। Then I4 and I7, so I3 I6 we can combine, I4 I7 we can combine in one state, and I8 and I9 we can combine in one. So we can write I36 is like I36, I47 लिख सकते हैं I47, I89 लिख सकते हैं I89। ओके, तो अभी बेटा किसी ने ज्वाइन किया नहीं है, नो इशू, यू कैन जस्ट गो टू यूट्यूब चैनल एंड देन यू कैन सी माय रिकॉर्ड लेक्चर। तो देखिए एलआर में क्या करने वाले हैं, सेम चीज है, यहाँ तक भी सेम स्टेट आएगी, ओनली डिफरेंस इन पासिंग टेबल। देखिए I3 and I6 both have same in their LR0 items, but they different their look ahead, so we call it I36। similarly I4 I7, तो I36 क्या हो जाएगा, ये हमारा I36 हो जाएगा, I47 हो जाएगा, और ये हमारा। तो जहां जहां I3 था और 6 था, तो I3 and I6 can be combined to I36, I4 and I7 can be combined to I47, and I8 and I9 can be combined to, ये हमारा देखिए स्टेट कम हो गया, तो जहां जहां I3 6 था वहां वहां ये आ गया, और S3 S4 7 ये सब हमारे कंबाइन हो गए। ओके, सो दिस इज द LA-LR1 पार्सिंग पार्सल। इसमें कुछ इसमें सबकी सेम होती है, तो स्टेट को कंबाइन कर देते हैं और इसमें LR1 यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखा था आपने, यहाँ पर 4 पार्सर थे हमारे पास बिगिनिंग में, LR पार्सर के 4 वर्जन थे। Here LR0, SLR1, LA-LR1, CLR1, LR0 और SLR1 में क्या यूज करते हैं हम, यूज LR0 items, canonical collection of LR0 items, and LA-LR1 and CLR1 में यूज करते हैं canonical collection of LR1 item, that is nothing but the collection of LR0 and L plus look ahead। okay, तो पार्सिंग टेबल सबकी डिफरेंट, ये पार्सिंग टेबल सबके सबके डिफरेंट है। यहाँ पे क्या था, we place reduce move in all the row, in here we place reduce move in the follow of left hand side, here we place reduce move only in the look ahead symbol, here we place reduce move only look ahead symbol, and we combine the similar state, only they are different in look ahead symbol। okay, this is about LR पार्सर। तो पार्सिंग हम लोग फिनिश कर चुके हैं। पार्सर में क्या क्या था हमारे पास, यहाँ देखा होगा बिल्कुल, एक तो हमारा L11 ग्रामर थी, बॉटम अप पार्सर था, बॉटम अप पार्सर के पास क्या था हमारे पास, टॉप डाउन पार्सर, बॉटम अप पार्सर के पास टॉप डाउन पार्सर हमारे पास था। बॉटम अप पार्सर में हमारे पास क्या क्या थे, ये चेक किया था हमने, ये बॉटम अप पार्सर, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग एंड LR पार्सर के 4 वर्जन। शिफ्ट रिड्यूस वी हैव स्टडीड, ऑपरेटर प्रेसिडेंस वी हैव स्टडीड, एंड देन in this class we have seen LR1 LR1, and the previous class we have seen LR0 LR1। okay, so one conflict, two conflicts are there, shift reduce conflict and reduce reduce conflict। what is shift reduce conflict, I'm just going to explain। वो तब होगा मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे होगा शिफ्ट reduce conflict। तो जैसे मान लीजिए हमारी स्टेट है, ये DFA हमने बनाया हुआ, अब इसी DFA में हमारे पास शिफ्ट भी हो और रिमूव और रिड्यूस भी हो, या एक DFA में हमारे पास दो दो रिड्यूस है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे,
yes, yes. Shift reduce conflict. So in the canonical collection, the find all final item and see what is the meaning of final item. Dot at the rightmost of any item. It's called final item. ठीक है, इसे कहते हैं final item. तो इसमें क्या होगा? If some column in the action part contains both shift and reduce move, then it is shift reduce conflict. If a state contains two reduce move, then it is called reduce conflict. Example जैसे वन है, consider a state I having following LR0 item A to B dot and X to X dot A. तो अब देखिए टर्मिनल पे क्या होगा हमारे पास, शिफ्ट होगा और यहाँ क्या होगा, गो टू होगा, ठीक है। तो X पे क्या होगा, गो टू, एंड इस पे क्या होगा, शिफ्ट। तो ये क्या होगा, शिफ्ट रिड्यूस, ठीक है। सॉरी सॉरी, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। दिस इज फाइनल आइटम, दिस इज फाइनल आइटम। तो यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस मूव, दिस वन रिड्यूस, एंड दिस इज नॉन टर्मिनल, यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट। तो शिफ्ट एंड रिड्यूस बोथ आर सेम। यहाँ पे क्या होगा, हियर वी हैव ट्रांजिशन ऑन ए, ट्रांजिशन ऑन ए एंड रिड्यूस एट ए टू बी डॉट, दोनों एक साथ हो रहा है, दैट्स व्हाई कॉल्ड शिफ्टिंग। तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट में to consider grammar having this, so we have two final items. We have two final items, A to A dot, B to B dot. So we have two reduce items. We have to perform two reduce operations. Okay. This is called reduce. These two conflicts. So we can remove these two conflicts with the help of SLR1. Okay. This is all about this parcel, top down parcel and bottom parcel. Now syllabus में क्या रह गया हमारे पास? Let me just show you syllabus. Now we have studied, we have seen all these, we have discussed. Now next topic is syntax analyzer. YACC. Get another compiler syntax analyzer. Okay. तो कल हम इसी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या होता है। तो नाउ जस्ट